अभी क्लास में so I was saying that in the kinematic sense, what we are doing, we are observing the positions in kinematic manner. So every time we are at the new position, isn't it? So let's say we are moving, and the moment we start our navigation receiver or the receiver in kinematic manner, so what it will take, it will form the trajectory of our movement. So the moment we are in on a road, let's say on a path, we are moving from one step to another. So it will change the positions also over the period of time. So geometric distance in static sense of for point A is given as this equation is very similar, but kindly remember in that equation your xa, ya and za for a point A, it has a bracket of t against it. That is, in the first equation, it has a bracket of t. That means the position of x, y, z are time dependent. Please remember, the position of x, y, z are time dependent. That shows that these positions are changing with respect to time. Okay, that is first point. Second is, now based on your model, you can open your note sheet, and based on your model, you can understand that with the help of these models, you can convert these equation for kinematic manner. The only change that will occur is that irrespective of the other things, only change will occur in the position of 3. So wherever 3 is written, it will be multiplied by nt, which is number of epoch. So it is multiplied by 3 nt. So initially it was 3n. Oh, sorry. Initially it was only 3 because there was a static cases. But now it is the cases of kinematic case. So that's why this is being added with the 3 multiplied by nt. So for SD, it would become nj should be greater than 4. For DD, it would become nj minus 1 should be greater than 4 and nj should be greater than 5. And for triple difference, it would be nj should be greater than 4. Just look at the slide, and if you have any doubt, you can ask at this moment. Otherwise, I don't think any issue in that. Any question you can ask. Sir, Okay, so next we are reading this summary. I'm just opening the summary for you all. You just observe it one by one. So for absolute static case, for chord single point positioning, phase single point positioning, the nj into nt should be greater than 3 plus nt. For phase single point positioning, it would be nj into nt should be greater than 3 plus nj plus nt. चलिए, अब मैं रुचि से कहूंगा, रुचि अपना ऑन करिए अपना माइक, और मुझे ये बताइए कि
जो ये एनजे एनटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस एनटी कोड वाले केस में लिखा हुआ है, और जो फेज वाले केस में लिखा हुआ है उसमें इंडिविजुअल एनजे और एनटी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जरा बताइए। सर नहीं याद है सर, भूल गई। रुचि, यस सर। सर नहीं याद है। भाई क्यों नहीं याद है? इसमें क्या ऐसा रॉकेट साइंस है जो आपको नहीं याद है? क्लास तो पिछली की आपने। यस सर, सर रिवाइज नहीं किया तो सर भूल गया सर। रिवाइज नहीं किया तो रे, तो लिखा तो है भाई कि आंख बंद करके लिख दिया था, ऐसे नहीं चलेगा। आप बताना तो पड़ेगा ही आपको क्या है ये, और ना आप पूछ रही हैं, इसका मतलब आपको समझ में भी आ रहा है। सर रिवाइज नहीं किया इस वजह से सर अरे नहीं तो अभी पूछा तो सर। बताइए क्या है, रिवाइज करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने अगर खुद से लिखा है लास्ट क्लास में तो आपको पता होगा, उसमें रिवाइज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भाई ऐसे लापरवाही से काम चलेगा नहीं, ये मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। ये 10th और 9th नहीं है कि मैडम ने पूछा है, सर ने पूछा तो अगले दिन रिवाइज करके आएंगे तो बताएंगे, ये सब नहीं है। रियल टाइम में आपको चीजें पता होनी चाहिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको तुरंत पूछना पड़ेगा। चलिए प्रवीण, प्रवीण बताइए। प्रवीण यस सर। बताइए। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आवाज नहीं आ रही, बोलिए। बस इट इज ओनली 1 वीक, एक ही वीक के बाद आप फिजिकल आ जाएंगे यहाँ सभी लोग, 22 तारीख से। बताइए प्रवीण। सर क्वेश्चन क्या था? क्लियर क्वेश्चन नहीं ये है कि जो ये आपने एनजे एनटी सब आप देख रहे हैं ना कोड, हुआ। यस सर। हाँ तो ये क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। आपने सर लिख के एनजे भेज। जो का नाम हमारा, यस सर एनजे जो हमारा सैटेलाइट है, और का नाम आई जो का नाम रिसीवर है। नंबर ऑफ है, दैट इज गुड, बट एनटी क्या है? एनटी को हमने क्या बताया था? सर मतलब एक फंक्शन है का नाम। एनटी है नंबर ऑफ रिसीवर, ए सॉरी नंबर ऑफ इपॉक।
आपके रिसीवर का सुन के हमने भी रिसीवर बोल दिया। एनटी है नंबर ऑफ इपॉक, ठीक है। Yes, sir. नंबर ऑफ इपॉक मतलब फॉर हाउ मच टाइम यू आर गेटिंग द डेटा। लेट्स से यू आर गेटिंग डेटा पर सेकेंड, तो फ्रॉम 4 सैटेलाइट, तो लेट्स से यू हैव given or taken data for let's say 1 minute. So how many data you will be getting from 4 satellite for 1 minute? 4 into 60 4. because you have taken data for every second, ठीक है। Okay, sir. चलिए अब मैं सुनील को बुलाऊंगा। सुनील, यस सर। अब मुझे बताइए, जो ये इक्वेशन लिखी है फेज एसपीपी, जो पहली दूसरा कॉलम दूसरी रो है, फेज एसपीपी जो लिखा है, इसमें ये जो एनजे है सेकंड नंबर पे, जो एनजे है एनजे इंटू एनटी ग्रेटर देन 3 प्लस एनजे प्लस एनटी, इसमें जो ये एनजे है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे ये अरुण, ये शुभम भी नहीं दिख रहा है क्लास में काफी दिनों से। यस सर, बट पिछले टाइम से था सर, बट अभी 2-3 दिन से नहीं है सर, पता नहीं क्यों नहीं है सर। चलिए सुनील बताइए। प्रयास करिए। सर इसमें जो सैटेलाइट होती है, जब वन एक पोजीशन दूसरे पोजीशन पहुंचते हैं सर, वो है नंबर ऑफ सैटेलाइट सर। नहीं नहीं नहीं, राइट साइड में जो एनजे लिखा हुआ है मैं वो जानना चाह रहा हूँ, वो क्या है? चलिए मैं समझ रहा हूँ आप लोग असल में सीरियस होकर के पढ़ नहीं रहे हैं अभी। शिवम, चलिए शिवम बताइए। शिवम का टर्न है बताने का, बताइए। हेलो हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए। अरे भाई थोड़ा तेज बोलेंगे कि बस वहीं मोबाइल में ही बोल के एंड हो जाएंगे? फिर से ज्वाइन करिए आप, हमें लग रहा है आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, फिर से ज्वाइन करिए। चलिए भगत बताइए, व्हाट इज दिस एनजे? आप लोगों ने पूछते हो, आप लोग नहीं हो तो हम ही पूछते हैं। यस सर। बताओ। सर बहुत बेसिक थ्योरी होती है जीपीएस की। जीपीएस की थ्योरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन तब आता है जब आप लोग पढ़ते ही नहीं है, विच यू पीपल आर डूइंग राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर। या आप लोग केवल जो क्लासरूम में पढ़ा दिया गया है, यू आर उसी के राम भरोसे चल रहा है जीवन आपका। द आइडिया फॉर पीजी प्रोग्राम इज टू इन्वेस्ट योर टाइम मोर ऑन द एक्टिविटीज, तब आपके ज्यादा से ज्यादा चीजें इंप्रूव होंगी। अभी मैं लास्ट में क्लास एंड करता हूँ, मैं पूछता हूँ बताइए, तो कोई कुछ बताता है, पूछता ही नहीं है, तो ये लगता है सबको समझ में आ गया। और जब पूछते हैं तो रुचि कह रही है क्लास रिवाइज नहीं किया, आपके जो प्रवीण है वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा ना। बताइए भगत, व्हाट इज दिस एनजे?
एनजे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सैटेलाइट का तो कंपोनेंट है, बट यहाँ क्यों आया है, क्यों लिखा गया है? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। Sir, for each epoch and each satellite. नहीं, एनजे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है वो बताइए। Sir, number of satellite. नहीं, एनजे रिप्रेजेंट तो नंबर ऑफ सैटेलाइट कर रहा है, बट यहाँ क्या उसका मीनिंग है, यहाँ क्यों लिखा गया है? वो तो अरुण आप बताइए। Sir, NJ for unknown ambiguity. यस, ये वेरी गुड। आपको ये समझना होगा कि एनजे क्यों आया है। आपको पहले देखना है एनजे सैटेलाइट के लिए आया है, एंटी इपॉक के लिए आया है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो समझ में आता है कि जितने सैटेलाइट और जितने इपॉक के लिए अवेलेबल है उतना तो ऑब्जर्वेबल हो गया। बट राइट में 3 किसके लिए आया है, एंटी किसके लिए आया है, एनजे किसके लिए आया है, ये अगर आप नहीं बता पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। रुचि चलिए बताइए 3 किसके लिए आया है? रुचि सर मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। आप बताइए, आप कितना ब्लंडर आप बता रही हैं। मतलब आप ऐसा बता रही हैं जैसे आपने पूरे सेमेस्टर में सिर्फ यही पहली क्लास पढ़ी है, जो आप तुक्का मार के बता रही हो। अरुण बताइए, why 3 is appearing in the screen? So 3 for receiver coordinates, I think. Yes, very good. 3 is for receiver coordinate XYZ. आप रुचि ध्यान नहीं दे रही भाई बिल्कुल भी। I'm very sorry to say, but you are not concentrating on the studies. देखिए, सिर्फ क्लास अटेंड करने के लिए क्लास अटेंड मत करिए। अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो यू हैव टू आस्क। क्योंकि एक स्टूडेंट बता पा रहा है, एक नहीं बता पा रहा है, इसका मतलब है क्लास में पढ़ाया गया है। अब आप नहीं बता पा रहे, इसका मतलब आपकी फॉल्ट है। Okay, so this 3 is representing the receiver coordinates, that is x, y, z, and this nt is representing the epoch. But right hand side we have to justify why 3 is appearing, nt is appearing, nj is appearing. You must also understand at the same time. So 3 is appearing for receiver coordinate, nj in the phase SPP is appearing for the unknown ambiguity at the time of lock with the satellite, and NT in both code SPP and phase SPP is appearing for receiver clock offset error. ठीक है, क्लियर? देखिए, जल्दबाजी नहीं करना, ये बहुत बेसिक चीजें अगर ये क्लियर हो गई तो थ्योरी आप लोग तुरंत कहीं सी बुक से भी पढ़ लेंगे, उसमें कुछ बचता नहीं है। चलिए, अब समझ लिया होगा
क्वेरी कोई नहीं है? फिर से मैं रिवाइज पुट अप कर रहा हूं क्वेश्चन वन बाय वन। चलिए सुनील, अब आप बताइए, ये जो फेज डबल डिफरेंस का जो कॉलम है, यानी कि जो सेकेंड नंबर का रिलेटिव स्टैटिक के नीचे जो फेज डबल डिफरेंस लिखा है, उसमें लिखा है एनजे माइनस वन इंटू एन टी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 प्लस एनजे माइनस वन लिखा है। यस सर। अब बताइए एनजे माइनस वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे दोनों साइड में? ये भी अननोन एम्बिग्यूटी है। तुक्का मत मारिए, तुक्का मत मारिए भाई। अननोन एम्बिग्यूटी क्यों होगी? एम्बिग्यूटी क्या दोनों साइड होती है? पहले ये बताइए, नो क्या दोनों साइड एम्बिग्यूटी होती है? नो सर। फिर तो एक तरफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक तरफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये तो बताना पड़ेगा ना। लेफ्ट साइड सर एम्बिग्यूटी है और फिर राइट साइड सर नंबर ऑफ सैटेलाइट है। अब चलिए अपनी क्वेश्चन निकालिए जो उस दिन आपने लिखी थी, अपनी शीट निकालिए, नोट शीट। अब डबल डिफरेंस इक्वेशन पे जाइए और देखिए एम्बिग्यूटी लेफ्ट साइड लिखी गई है या राइट साइड लिखी गई है? सर राइट साइड। तो फिर एनजे माइनस वन किधर आएगा? एनजे सर माइनस जो वन राइट साइड हो वो भी एम्बिग्यूटी। राइट साइड वाला भी एम्बिग्यूटी है, तो लेफ्ट साइड वाला क्या है? सर माहौल को भांपते हुए शिवम धीरे से निकल लिए क्लास से। चलिए ठीक है। सर हाँ सर एक बार बता दीजिए कि मतलब सिंगल डेरिवेटिव इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे लिखे कल। भाई, आप पहले इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन तो आपने लिखी होंगी ना जब मैंने लास्ट टाइम बोला था। हाँ सर दोनों लिखे हैं डबल डिफरेंस सर, लेकिन उससे फिर ड्राइव कैसे कर रहे हैं अब यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं आपको बता रहा था लास्ट टाइम। आपको ऐसे देखना है कि हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर यूज्ड इन दिस इक्वेशन राइटिंग एंड हाउ मेनी epochs are being explained and how many observable you are recording. तो आप पहले सिंगल डिफरेंस की इक्वेशन पे जाइए। एक सैटेलाइट है, एक इक्वेशन आ गई। डबल डिफरेंस पे जाइए, दो इक्वेशन है और एक इपॉक पे लिखी गई है। तो जब डबल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ टू सिंगल डिफरेंस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक डबल डिफरेंस बनाने के लिए एक डबल डिफरेंस बनाने के लिए दो सिंगल डिफरेंस का सब्सट्रैक्शन होता है, लेकिन उसमें सैटेलाइट की संख्या नहीं घट रही है। It will be inside that property file, right? Not the column counting. क्या बोल रहे हैं? सर नो सर अभी तक सर नहीं क्लियर हुआ, एक बार थोड़ा चलो बेसिक्स इक्वेशन थोड़ा। मैं दिखाता हूं, मैं इक्वेशन दिखाता Yes. हूं फिर से। हाँ सर एक देखिए ये डबल डिफरेंस की इक्वेशन है। अब आपकी टेबल पे अभी आ रही है, एक मिनट रुकिए।
आ गई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे? तो yes आपने sir जब दो सेटेलाइट थी तो कितनी डबल डिफरेंस की इक्वेशन अचीव की? एक है हाँ तो 2 से 1 मिल रही है तो एनजे से कितनी मिलेंगी? एनजे माइनस 1। yes sir एम्बिग्यूटी 2 थी, कितनी बची कंबाइंड होकर के? 1। तो यानी कि एम्बिग्यूटी भी एनजे माइनस 1। लेकिन इपॉक एक ही था तो एक ही बचा, तो वो एनटी ही रहा। क्लियर हुआ? yes sir so basically we're making a equation after मतलब obtaining the इट इज इन जनरलाइजेशन ये बताया जा रहा है कि इक्वेशन बनाने में कितने ऑब्जर्वेबल प्राइमरली पहले स्टेप पे थे और कितने बचे। yes sir ठीक है। अब ट्रिपल डिफरेंस के लिए आप यही चीज सोचिए कि ट्रिपल डिफरेंस में क्या कहते हैं, एनजे एनटी दोनों में रिडक्शन हुआ है। तो देखिए आप इक्वेशन, एनजे -1 और एनटी -1। क्यों? जब दो सेटेलाइट थी तो एक ट्रिपल डिफरेंस की इक्वेशन आ रही है, और दो इपॉक थी तब भी एक ही इपॉक के लिए ट्रिपल डिफरेंस आ रहा है। क्यों? T1 T2 कंबाइंड हो जा रहा है, तो वो भी 1 माइनस से घट गया, तो एनजे -1 इंटू एनटी -1। ठीक है। क्लियर हुआ? बताइए। भगत, हाँ वही सोच रहे हैं बताइए अगर डाउट हो रहा है तो। यस सर तो हाँ तो फेज टीडी में सर हाँ इक्वेशन इक्वल टू 3 हो रहा है। एक सिंपल एग्जांपल लेते ठीक। हैं। ये सबका क्लियर हो गया सर फर्स्ट ट्राई में तो हम तो इक्वेशन में नहीं आ पाएंगे, मतलब सोच नहीं पाएंगे। क्या चीज? सर फर्स्ट ट्राई में ऐसे सोच नहीं पाएंगे कैसे इक्वेशन बन रहा, मतलब क्वेश्चन नहीं हो पाया, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, क्वेरी क्या है? सर नॉट ए क्वेरी लाइक not able maybe I not able to catch like the first iteration much first try not a question that's अरे भाई हिंदी में बोलिए।
अंग्रेजी मत बोलिए, हिंदी में बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सर नहीं, कुछ नहीं सर, बस कुछ नहीं सर। It is on the status, right? चलिए अब फिर क्वेरी हम पुट अप कर रहे हैं। अगर और किसी कोई डाउट नहीं तो मैं, मेरा क्वेश्चन फिर से आने वाला है आप लोगों के लिए कि फेज डिफरेंस काइनेमेटिक में आ गए। तो अब चलिए प्रवीण बताइए, जो सिंगल डिफरेंस लिखा है उसमें, जो सिंगल डिफरेंस लिखा है रिलेटिव के काइनेमेटिक के नीचे फेज डिफरेंस, फेज एसडी के आगे लिखा है SD is equal to NJ into NT should be greater than equal to 3NT plus NJ plus NT। तो बताइए इसमें 3NT क्या है प्रवीण? यस सर। हाँ बताइए 3NT क्या है? सर वो मतलब वो कोऑर्डिनेट इपॉक होगा। क्या कह रहे हैं सर अननोन क्लॉक बायस। सोच समझ के बोलिए, कुछ भी मत बोलिए, सर लॉजिकल लॉजिकल चीजें समझने की कोशिश करिए। एनटी 3 इंटू एनटी का मतलब क्या हुआ ये सोचिए पहले। 3 क्या है, फिर उसके साथ एनटी मल्टीप्लाई हो रहा है, थ्री एनटी सर क्या है? हाँ 3 क्या है, कोऑर्डिनेट। तो एनटी क्या है? सर वो मतलब नंबर ऑफ इपॉक। तो 3 इंटू एनटी का मतलब क्या हो गया? सर हाँ क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हर इपॉक पे 3 पोजीशन, 2 इपॉक तो 6 पोजीशन, 3 इपॉक तो 9 पोजीशन, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करिए ना तुरंत। ओके सर। देन सर 9 इपॉक। तो 3 इंटू एनटी का किस लिए रिप्रेजेंट हुआ? 3 इंटू एनटी 99 इपॉक के लिए। अरे 9 तो यार एग्जाम्पल है भाई, 9 तो एग्जाम्पल लिया गया है, अभी 9 मत बोलिए। 3 इंटू एनटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे ये बताइए। अभी देखिए रुकिए, चलिए अरुण अब बताइए 3 इंटू एनटी क्या है? हेलो अरुण, यस सर। यस सर। बताइए 3 इंटू एनटी क्या है? सर 3 हमारे रिसीवर के कोऑर्डिनेट्स हैं सर, और जो एनटी है हमारा वो अननोन क्लॉक बायस है, तो सर इससे हम कह सकते हैं नहीं कि नहीं अननोन। नहीं नहीं, फिर गड़बड़ कर दिया आपने। अननोन क्लॉक बायस एंटी नहीं है, तो वो है ना सर, इपॉक है। वो तो इपॉक है। यस, इपॉक है सर। तो 3 इंटू एनटी क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिसीवर सर। कोऑर्डिनेट ऑफ रिसीवर तो 3 है, बट 3 इंटू एनटी क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। सर उस इपॉक पे जितने भी इपॉक हो रहे हैं उसके उस पे क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे सर, वो डिपेंड करेगा। हाँ क्यों? क्योंकि ये काइनेमेटिक केस है, हर इपॉक में कोऑर्डिनेट चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आदमी मूविंग है, काइनेमेटिक है। काइनेमेटिक मतलब इन मोशन है। यस सर। फिर उसके बाद का जो एनजे है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर एनजे तो हमारा वो कर रहा था। प्रवीण बताएंगे, प्रवीण, प्रवीण आप बताइए। सर नंबर ऑफ सैटेलाइट।
फिर वही आ गया नंबर ऑफ सेटेलाइट। अरे तो लेकिन नंबर ऑफ सेटेलाइट है, लेकिन यहाँ राइट हैंड साइड में क्यों आया, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एनजे? सर नहीं पता। एम्बिगुटी को, अननोन एम्बिगुटी को। इक्वेशन आप देख ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब तुक्के से बता रहे हैं। आपके माइंड में इक्वेशन होनी चाहिए ना। और फिर एनटी जो है वो है नंबर ऑफ रिसीवर क्लॉक ऑफसेट, ठीक है। सिमिलरली फेज डबल डिफरेंस फॉर काइनेमेटिक एनजे -1 रहेगा फॉर रिड्यूस्ड ऑब्जर्वेबल, और राइट हैंड साइड में एनजे -1 रहेगा फॉर रिड्यूस्ड एम्बिगुइटी बाय 1, एंड इट बिकम्स एनजे -1 into nt should be greater than 3 nt plus nj -1. And similarly in the phase triple difference it would become nj -1 into nt -1 should be greater than 3 nt. अभी भी इसमें किसी को डाउट है? रुचि, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, नहीं पूछेंगी तो इट वुड एज्यूम्ड एज आपको सब समझ में आ रहा है। सर फेज डबल डिफरेंस में बता दीजिए सर, नहीं आया। फेज डबल डिफरेंस क्या बताना है उसमें? सर ये nj-1 और सर ये पूरी इक्वेशन ऊपर वाली सर पहली डबल डिफरेंस की। ये इक्वेशन आपके सामने आ गई क्वेश्चन। अब आप देखिए, दो सिंगल डिफरेंस की इक्वेशन लिखी गई थी, तब एक डबल डिफरेंस की इक्वेशन आई। दो सिंगल डिफरेंस की इक्वेशन क्या है? phi abk and phi abj are the two equation of the single difference, then they are subtracted to get phi abjk. तो phi abjk एक वैल्यू आई जब आपके पास दो सेटेलाइट थी, phi j and phi k, ठीक है। On the right hand side you have NABJ, NABK, that means two single difference ambiguity were there, you have subtracted, तो एक combined ambiguity मिली, तो it is NJ -1। आप पूछा करिए सभी लोग, it is expected कि जो चीज समझ में नहीं आ रही आप पूछिए। अभी भी दिक्कत बताइए। नो सर। भाई आपके जितने प्राइमरी ऑब्जर्वेबल थे वो जैसे ही घट रहे हैं, वो कब घट रहे हैं? जब सिंगल से डबल में आए आप, तब घट रहे हैं। सिंगल में तो एनजे इंटू एनटी से ही सब कुछ चल रहा है, पर जब सिंगल से डबल में आए तो दो सेटेलाइट थी, एक ऑब्जर्वेबल बना। तो अब एक चीज और भी समझ लीजिए सभी लोग, लेफ्ट हैंड साइड में दीज आर दी ऑब्जर्वेबल्स, तो फाई एबीजेके जो बन रहा है, दीज आर ऑब्जर्वेबल्स, these are recorded, these are prepared. On the right hand side you all have unknowns,
ठीक है। यस सर। चलिए मॉडल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी और कोई क्वेरी हो तो बताइए। क्योंकि मॉडल वाली चीजें जब क्लास में सभी लोग हों तो बताने में ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटरेक्शन करेंगे ना तो पूछने में पता चलेगा डिफरेंसेस। एनी मोर क्वेश्चंस? तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई गेट दिस अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग प्रैक्टिस अगर करें तो काफी आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर एंड on the next class you will be given one lecture on atmospheric error sources and error sources in general. So tomorrow Thursday lecture is very important. You need to attend all of you और उसमें आप लोग जो एरर सोर्सेज हैं जीपीएस की इन जनरल उसके बारे में समझेंगे और जो ट्रोपोस्फेरिक और आइनोस्फेरिक एरर प्रीडोमिनेंटली जीपीएस के रिजल्ट्स में जीपीएस के डेटा में होती हैं उसको कैसे रिमूव करना है वो भी समझेंगे। ठीक है। तो और प्रैक्टिस जरूर करिए। आपको मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये स्लाइड शायद मैंने शेयर कर रखी है ऑलरेडी। आपके पास है ये वाली स्लाइड जीपीएस 4 वाली? यस सर। है सर। यस सर। तो इसकी प्रैक्टिस सर करिए। है। इसको आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इसलिए मुझे बड़ा चिंता हो रही है कि कैसे आप लोग एग्जाम में लिखेंगे। ऑनलाइन एग्जाम अब नहीं होने हैं, फिजिकल एग्जाम होने हैं। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन बड़े उसमें क्रिटिकल आने वाले हैं। कैसे आप जवाब देंगे क्वेश्चंस का? चलिए ठीक है। ओके ऑल राइट। थैंक यू।